Hello students, welcome back. In previous lecture we have studied about the pressure. We have seen the units of pressure also. The SI unit of pressure was Pascal, that is Newton per meter square, and the CGS unit was Dyne per centimeter square, that is Barry. We have seen one practical unit also, that is 1 atmospheric pressure, that is 1 atm, and it was equals to 101,325 pascals. We have seen that what are the practical applications of pressure in our day-to-day life. We have seen that camel foot are broad so that it can easily move on sand without getting them sink down. As area is increased, so pressure has been decreased, and hence a camel can move firmly on sand. We have seen that knife has a sharp edge or nail has a pointed tip, so that the area is less and the pressure is high, so they can penetrate into wall and cut the fruits and vegetables easily. We have seen so many examples of the day-to-day life practical application of pressure. Now today we will going to begin some important things such as the numericals on pressure, and second thing that how pressure will going to vary with force and area. That is, if the force is doubled or halved, or the area is doubled or halved, or 1/4 or 1/8 or made 4 times or 8 times, then how the pressure will going to change. So beginning with the, you can take it as important note. Yesterday we have discussed that pressure is inversely proportional to area for given force. If the force is constant, means it is a fixed quantity, then area is inversely proportional, pressure is inversely proportional to area, and pressure is directly proportional to force for given area. So these were the two things that we have seen in our last class. Now let us see some more things. First, I am taking an example, okay. In this we are seeing, like, if area is doubled, pressure will be halved, and if area is halved, pressure will be doubled. How? Let us see. See, let us say if pressure is force upon area, and I know in my mind that force is the perpendicular one, that is the thrust. So pressure is force upon area, that is perpendicular force upon area. Now if force remains same and area, new area, let us say A prime, so A dash or A prime is half of the previous area. So new pressure will be equals to force, that is same, upon area prime, that is the new area. So force will remain same and area prime will be A by 2. This will be P prime. On solving, P prime will be equals to twice of F by A. This 2 will going to come up in numerator. So P prime will be equals to 2F by A, and I know F by A is nothing but P. So P prime will be equals to twice of P. So what I have done, I have halved the area. The new area is A by 2. See, pressure is F by A. Pressure is F by A. Now new area, that is A prime, becomes A by 2. New area, that is A prime, becomes A by 2. So P prime will be equals to F upon A prime. So P prime will be equals to F upon new area, that is A prime, which is equals to A by 2. So P prime will going to come as 2F by A, and I know that F by A is nothing but the previous pressure. So I have written it as P. So P prime will become twice of the previous pressure, means if area is halved, pressure will be doubled. You have seen if area is halved, pressure becomes double of the previous one. Now if area is doubled, let us see if area is doubled. So if area is doubled,
means A prime becomes 2A. So P prime, that is the new pressure, will becomes P upon A prime. So it will be P upon A prime, that is 2A. This will be equals to P prime. Sorry, this will be F by. This will be this. Now F by A is nothing but P. So P prime will be equals to half of P. Means if area is doubled, you can see here, if the area is doubled, pressure will be halved. You can see pressure has become halved if area is doubled. अगर एरिया को मैंने हाफ करा तो प्रेशर क्या आया था, मेरा डबल आया था, और अगर एरिया को ट्वाइस कर दिया तो प्रेशर हाफ हो गया, क्योंकि प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर अ गिवन फोर्स. फॉर अ गिवन फोर्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. If I will going to triple the area, the pressure will be 1/3. प्रेशर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. और मैं एरिया को 3 टाइम्स कर दूं, या फिर एरिया को मैं 1/4 टाइम कर दूं, तो प्रेशर मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा. प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स. सिमिलर मैनर यू कैन प्रोसीड फॉर एनी ऑफ द गिवन क्वेश्चंस लाइक दिस, कि एरिया को इतना टाइम्स कर दिया तो बताओ प्रेशर कितना टाइम्स हो जाएगा. कुछ नहीं, इनिशियली प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया. नाउ न्यू एरिया दैट इज ए प्राइम. नए एरिया को मैंने ए प्राइम से लिखा है. ए प्राइम इज नथिंग बट ए डैश. ए डैश को हम ए प्राइम बोलते हैं. सो मैंने नए एरिया को लिखा a/2. तो नया प्रेशर आया फोर्स अपॉन नया एरिया. नए एरिया की वैल्यू पुट कर दी a/2, और जब सॉल्व करा तो f/a बन गया. f/a क्या था, पुराना प्रेशर था, तो उसको पुराना प्रेशर लिख दिया. नया प्रेशर डबल आ गया. सेम इधर करा, नया एरिया पुराने एरिया का डबल था, तो नया प्रेशर फोर्स अपॉन नया एरिया. फोर्स तो वही है, नया एरिया हो गया 2a, तो ये f/a वापस क्या बन गया, पुराना प्रेशर बन गया. तो नया प्रेशर कितना आया, पुराने प्रेशर का आधा. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस. In this what we are going to do, that if force is doubled, then pressure will be doubled, and if force is halved, pressure will be अगर मैं फोर्स को डबल करता हूं तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, और अगर मैं फोर्स को हाफ करता हूं तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा. कैसे, वापस देखते हैं. प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया होता है. अब नया फोर्स दैट इज एफ प्राइम विल बी ट्वाइस ऑफ पुराना फोर्स. तो नया प्रेशर विल बी नया फोर्स अपॉन एरिया. नए फोर्स की वैल्यू क्या है, 2f/a. तो मेरे पास जो P प्राइम आया वो आया 2f/a, और मुझे पता है f/a कुछ नहीं, पुराना प्रेशर है. तो नया प्रेशर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ पुराना प्रेशर. तो मैंने देखा अगर मैंने फोर्स को डबल कर दिया, तो प्रेशर भी क्या हो गया है, मेरे पास डबल हो गया है. अब मैं क्या करूंगा, फोर्स को हाफ टाइम्स कर दूंगा, तो प्रेशर फोर्स को क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा. तो लेट अस सी दैट आल्सो. लेट अस हैव अ लुक इन व्हिच आई हैव डन न्यू फोर्स एज. तो क्या करेंगे अब हम फोर्स को हाफ कर देंगे, तो f प्राइम कितना हो जाएगा, f/2. f प्राइम कितना हो जाएगा, f/2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, f/2 f प्राइम. सो ये मेरा आ गया f प्राइम, कितना आ गया ये, f/2. तो p प्राइम हो जाएगा f प्राइम बाय a, और f प्राइम की वैल्यू क्या है बच्चों, f/2 है, तो ये हो जाएगा f/2a. क्या, p प्राइम. और f/a कुछ नहीं है, पुराना प्रेशर है, तो p/2 हो जाएगा मेरे पास p प्राइम की वैल्यू. तो आपने देखा और समझा क्या, कि अगर मैं फोर्स को हाफ कर दूं, फोर्स को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. देखो मैंने फोर्स को क्या करा था, हाफ कर दिया था, प्रेशर मेरा क्या हो गया, हाफ हो गया. इधर देखो मैंने फोर्स को डबल कर दिया था, प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया. अगर मैं फोर्स को 3 टाइम्स करता तो प्रेशर 3 टाइम्स हो जाता, और अगर मैं फोर्स को 1/4 कर देता तो मेरा प्रेशर कितना हो जाता, 1/4 हो जाता. तो पहले हमने केवल एरिया बदला, फिर हमने केवल फोर्स बदला, और प्रेशर में चेंजेस देखे कि किस तरीके से वो चेंजेस हो रहे हैं. एरिया बदलने पे क्या चेंज आ रहा है, और प्रेशर में एरिया बदलने पे क्या चेंज आ रहा है, और फोर्स बदलने पे प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है. अब जो थर्ड केस हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम दोनों ही बदल देंगे.
उसके अंदर हम दोनों ही बदल देंगे, और वो किसी भी तरीके से बदल सकते हो, एक को डबल कर दो, एक को हाफ कर दो, दोनों को डबल कर दो, दोनों को हाफ कर दो। तो अपन एक केस ले लेते हैं, आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन में। अगर ये चीज को ऐसे दिया तो कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि वो कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं वो डबल या हाफ दे, जरूरी नहीं है वो डबल या हाफ दे, वो ट्रिपल क्वाड्रपल कुछ भी दे सकता है। अब देखो हम दोनों को बदलेंगे। इफ फोर्स इज डबल्ड एंड एरिया इज halved, then pressure will be. Let us see pressure क्या आएगा। क्या करा है अब उसने, गौर से देखें आप, ध्यान से और गौर से देखें। फोर्स को तो क्या करा है, डबल करा है, फोर्स को क्या करा है, डबल करा है, और एरिया को क्या करा है, हाफ कर दिया। दोनों चीजें चेंज कर दी, वहां पे केवल एरिया चेंज करा था और यहाँ पर केवल फोर्स चेंज करा था, लेकिन यहाँ इसने दोनों चेंज कर दिया, फोर्स भी चेंज कर दिया और एरिया भी चेंज कर दिया, और पूछा है प्रेशर में क्या चेंजेस आएंगे बताओ तो जरा। तो हम देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। इधर देखो बेटा, एरिया पहले तो लिख लो, सबसे पहले प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये इक्वेशन 1 यही रहने दो, ये तो मुझे पता है। अब उसने बोला फोर्स को डबल कर दिया, तो नया फोर्स दैट इज एफ प्राइम विल बी डबल ऑफ पुराना फोर्स, बहुत बढ़िया। और उसने क्या बोला, एरिया को हाफ कर दिया, तो ए प्राइम दैट इज नया एरिया विल बी इक्वल्स टू ए बाय 2 पुराना एरिया, इजंट इट। फोर्स को क्या कर दिया है, डबल कर दिया, और एरिया को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। बहुत बढ़िया, मैंने लिख लिया। और पूछा है नया प्रेशर क्या होगा, तो मुझे पता है नया प्रेशर हो जाएगा नया फोर्स अपॉन नया एरिया, नया फोर्स अपॉन नया एरिया। अच्छा बच्चों, नया फोर्स कितना है, पुराने का डबल है, मतलब 2F है, ये रहा। और नया एरिया कितना है, पुराने का आधा है, मतलब A/2 है। तो ये मेरे पास नया प्रेशर आएगा बच्चों, ये 2 जंप करके न्यूमरेटर में चल जाएगा, ये बन जाएगा 4F/A। क्या बन जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 2s are 4, F/A, F/A। तो नया प्रेशर दैट इज P प्राइम विल बी 4F/A। और इक्वेशन 1 से जरा देखो तो सही, F/A क्या है, P है, तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास एक चीज आ जाएगी, मेरे पास एक चीज आ जाएगी, और वो चीज क्या आएगी, वो चीज ये आएगी कि P प्राइम इक्वल्स टू फोर्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पुराना प्रेशर, P प्राइम इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पुराना प्रेशर। मतलब अगर फोर्स को डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया, तो नया प्रेशर पुराने का कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो ऐसा कुछ भी दे सकता है, हो सकता है फोर्स को आधा कर दे और एरिया को डबल कर सकते, हो सकता है दोनों को डबल कर दे, हो सकता है दोनों को ट्रिपल कर दे, हो सकता है एक को क्वाड्रपल कर दे और एक को हाफ कर दे। Anything is possible for these type of questions. You should know how to proceed in this type of question. First write down the initial pressure equals to force upon area, जो given है उसके अकॉर्डिंग लिख लो कि नया फोर्स कितना हो गया और नया एरिया कितना हो गया। जिस चीज में चेंज नहीं करा उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, जिस चीज में चेंज करा उसको वैसे लिखकर अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। एंड में F/E की टर्म आएगी, उसको वापस क्या पुट कर देना है, प्रेशर पुट कर देना, आपके पास ये आ जाएगा कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है फोर्स और एरिया को चेंज करने पे। Isn't it? Yes. So it was quite easy, I think. बहुत ही आसान चीजें थी, ये नोट के अंदर हमने लिख लिया इंपॉर्टेंट कि फोर्स और एरिया को बदलते हैं तो प्रेशर कैसे बदला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक आसान से एक दो न्यूमेरिकल हम छू लेते हैं, उसके बाद हम चालू करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टॉक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉक ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So let's start some numericals, very basic types. So the first numerical is, it is given that the area of a surface is 2.5 meters square and the force acting on that surface perpendicularly is 5 Newton. Then find out the pressure. Force acting on an area of 2.5 meters square is 5 Newton. You have to calculate the pressure. So what is given to me? It is given to me force which is equals to 5 Newton, and what is the area given to me? It is 2.5 meters square. What I have to calculate is the pressure. बहुत ही आसान
सॉरी, बहुत ही आसान। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। सबने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 5 न्यूटन है। कितनी है? 5 न्यूटन है। एरिया की वैल्यू क्या है? 2.5 मीटर स्क्वायर है। कितनी है? 2.5 मीटर स्क्वायर है। बिल्कुल सही सर। अच्छा, 2.5 की टेबल में 5 टाइम्स कितनी बार कैंसिल आउट होएगा? 2 टाइम्स कैंसिल आउट होएगा, तो इट विल बी 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 2 पास्कल। दिस इज माय फैंटास्टिक आंसर। ओके, कैसे? आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें तकलीफ है तो डेसिमल हटाओ 0, तो 25 से कितनी टाइम्स कटेगा? 52 टाइम्स। तो क्या आ गया मेरे पास? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल। तो मेरे पास क्या आ गया? 2 पास्कल। कितना आ गया? 2 पास्कल प्रेशर आ गया। कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन में क्या दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इट इज गिवन टू मी दैट देयर इज अ प्रेशर ऑफ 100 pascals. There is a pressure of 100 pascal which is acting on 20 centimeter square area. What is the force on that area? So what is given to me is the pressure. Pressure is given to me as 100 pascals, and area on which this pressure is acting, it is 25 centimeter square. So there is a pressure of 100 pascal which is acting on an area of 25 centimeter square. I have to calculate the force. Which is producing this pressure on this area. What I have to calculate is the force. Again, listen to the question. There is a pressure of 100 pascal acting on an area of 25 centimeter square, and I have to calculate the force. Find out the force. Now how I will going to proceed? Let's have a look. I know very well that pressure equals to force upon area. Pressure equals to force upon area. What is pressure? It is 100. It is given to me as 100. What is force? I don't know. I have to calculate. So let it be F only. And what is area? It is 25 centimeter square. So this will be 25 centimeter square. On cross multiplying, I will going to get 2500 Newton force. Isn't it? Isn't it? Yes. No. This is wrong. This is wrong. This is what you will going to do, and you will going to get a big 0. Why? Because this is wrong. Sir, why this is wrong? You have missed one thing, that this is in CGS unit. I have to convert it into SI unit because this is given to me in SI unit. So I will going to convert 25 centimeter square into the SI unit. So it will be 25 into 10 to the power minus 4 meter square. 10 to the power minus 4 meter square. Now I will going to proceed like this, which is the correct one. I am doing with a blue marker. Look here. Pressure equals to force upon area. Very good, sir. It is force upon area. What is pressure given to me as 100 pascal? What is force? I have to calculate. Let it be F only. What is area? Now area is not 25 centimeter square. It is 25 into 10 to the power minus 4 meter square. So it will be 25 into 10 to the power minus 4 meter square. Cross multiplying, I will going to get 100 into 25 into 10 to the power minus 4 equals to force. This force will come into Newton, that is the SI unit. So 10 to the power minus 4, I can write it down it as 4 zeros in denominator. Cancelling out 2 zeros with 2 zeros, this will be 25 cancelling out by 4. So F will be equals to 1 by 4 Newton, that is equals to 0.25 Newton. So this is my fantastic answer. This is my fantastic answer. This is wrong. This is completely wrong. First you have to convert all the units in a single system. It can be CGS, it can be SI. It depends on the options which are given to you if the question is objective type. But if it is subjective type, it's your wish. You can convert it into any one system. But generally, usually convert into SI system. I will prefer you to convert the units into the SI system only. So this is my answer, that is 0.25 Newton. Any doubts? No. Very good. There should not be. Now we are going to move forward. These are the two numericals. Third type of numerical, it can be that you can do at your home also. If pressure is given to me and force is given to me,
and what will be asked, it will be area that will be asked. क्या पूछ लेंगे हमसे ज्यादा से ज्यादा, एरिया पूछ लेंगे, तो हम इसी तरीके से प्रोसीड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे. इट वोंट बी अ बिग टास्क. So let us move to the next topic, that is atmospheric pressure. So let us move to the next topic, that is atmospheric pressure. Now what is atmospheric pressure? A very general term that you are listening every now and then in your day-to-day life. What exactly it means, atmospheric pressure? Now see, we are living in a world and we are living on Earth. We are living on a very unique planet which is known as Earth. We know that on Earth there is an atmosphere. There is an atmosphere, and we, I, you and all the human beings, animals and plants are submerged in that atmosphere. तो हमारे आसपास अभी क्या है, atmosphere है, हम उसके अंदर क्या है, डूबे हुए हैं एक तरीके से. We are submerged in a atmosphere. Now see, the atmosphere is made up of gases that we know. There are variety of gases. Oxygen is also there, hydrogen is also there, carbon dioxide is also there, nitrogen is also there. There are so many variety of gases, and this combination we called this combination of gases in our atmosphere as air. What we call it as air. So we are submerged in air. Now as these are gases, these gases have atoms and molecules and they have some masses. So sorry, so there must be some weight of this atmosphere. Means the atmosphere which is moving from the earth surface to some distance, it must have some mass. It must have some mass. तो इसका कुछ mass होगा, और this mass will be attracted by the force of gravity of earth. So that force will be known as weight. We have discussed in our previous chapter that weight is the force of gravity. So जो ये atmosphere है, इसका कुछ mass है और ये earth की तरफ खिंचा चला आ रहा है, ये अर्थ की तरफ खिंच रहा है बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इस फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इस एटमॉस्फेयर को, उसको हमने क्या बोला, इसका वेट. तो जो वेट है एटमॉस्फेयर का, वो सरफेस के ऊपर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा. अर्थ सरफेस पे क्या लगा रहा होगा बच्चों, प्रेशर जनरेट कर रहा होगा. उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. वापस समझें क्या है. अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर किसका बना हुआ है, एयर का बना हुआ है, गैसेस का बना हुआ है. ये गैसेस का कुछ मास होगा, ये मास की वजह से इनका कुछ वेट भी होगा, जिससे ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. तो जिस फोर्स से ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है उसका वेट है. तो ये जो फोर्स है, जो वेट है, वो अर्थ सरफेस पे क्या लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर तो जनरेट कर रहा होगा. उस प्रेशर को हमने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो मतलब अभी जो ये एयर का कॉलम है मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर क्या लगा रहा है, इसका वेट, प्रेशर लगा रहा है, और वो प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों, दैट इज, उसको ही हमने 1 atm बोला था, जो मैंने बताया था कि मैं बाद में अगले टॉपिक में इसको समझाऊंगा. ये कुछ नहीं है, ये 1 atm है, और इसकी जो वैल्यू आती है सी लेवल पे, दैट इज 101325 पास्कल. 101325 पास्कल और 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल. इतनी आती है कहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सी लेवल पर. कहां पर, सी लेवल पर. सी लेवल ही क्यों चूज करते हैं हम, क्योंकि सी लेवल ही एक ऐसा लेवल है जो कि अर्थ के लिए यूनिफॉर्म है. अदरवाइज इफ यू गोइंग टू गो ऑन माउंटेन्स, लेवल कुछ और रहेगा, कहीं कुछ और है. मैं यहाँ कोटा में रह रहा हूँ, यहाँ कुछ और है. आप अगर मुंबई रह रहे हैं तो वहाँ कुछ और है. अगर आप दिल्ली रह रहे हैं तो वहाँ कुछ और है. तो ऐसे पूरी अर्थ पे जो चीज कॉमन है वो क्या, सी लेवल. सी का लेवल पूरे अर्थ पे क्या है, फिक्स है. तो हमने सी लेवल पे निकाला प्रेशर, वो कितना आया, 101325 पास्कल आया. किसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो लगा रहा है. किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का.
एटमॉस्फेयर जो प्रेशर, एटमॉस्फेयर का वेट जो प्रेशर लगा रहा है सी लेवल पर वो कितना है 101325 पास्कल, मतलब मुंबई के अंदर ये प्रेशर होगा, जहां जहां सी है वहां पर ये प्रेशर होगा। अब ये प्रेशर वेरी करता है, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे वेरी करेगा हाइट और के साथ। हाइट अगर हम बढ़ाएंगे ना, एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो प्रेशर कैसे वेरी करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वी विल गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट टॉपिक। अभी आपको समझना है एटमॉस्फेयर प्रेशर होता क्या है। एटमॉस्फेयर की वेट की वजह से, इसका कुछ वेट होगा ना एटमॉस्फेयर का, ये जो प्रेशर लगा रहा है अर्थ सरफेस पे वो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सी लेवल पे इसकी वैल्यू जो हमने रिकॉर्ड करी है दैट इज 101325 पास्कल्स, व्हिच इज इक्वल्स टू 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। अब अगर आपको समझना है कि सही में ऐसा कोई प्रेशर लग भी रहा है नहीं लगना, अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, लेट अस डू दैट एक्सपेरिमेंट। आप कर सकते हैं। हमने लिए एक कैन, वी हैव टेकन अ कैन, सो दिस इज अ कैन, ओके। अब इस कैन के अंदर मैंने क्या करा, इस कैन के अंदर मैंने I filled up some water, I filled up some water and there is a small opening on this can, there is a small opening on this can, okay. Now I am heating up this water, I am heating up this water, I am heating up this can with some heat supply, that is can be stove or anything else। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टोव से हीट कर रहा हूँ। अब क्या होएगा, जैसे जैसे ये हीट होएगा तो ये जो पानी है, ये जो पानी है इसके क्या बनेंगे वेपर्स, इसके क्या बनेंगे वेपर्स, और ये पुश करेंगे इस एयर को, दे विल गोइंग टू पुश दिस एयर, ये वेपर्स बन के जो एयर है यहाँ पर ये एयर को बाहर निकाल देंगे, एयर को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। और मैं तब तक हीट करूंगा जब तक इसमें से कंप्लीट एयर बाहर नहीं चल गई और यहाँ पर क्या बचे हों, केवल वेपर्स ना बचे। जैसे ही कुछ टाइम तक मैं हीट करूंगा एयर क्या चल जाएगी बाहर चल जाएगी और यहाँ पर क्या बचेंगे वेपर्स बचेंगे, यहाँ पर क्या बचेंगे वेपर्स। और मैं जस्ट उसी टाइम थोड़ी देर बाद हीट करने पर जब यहाँ केवल वेपर्स बचे हैं, एयर नहीं है, यहाँ पर क्या है वेपर्स है, मैं यहाँ पे कॉर्क इंसर्ट कर दूंगा। क्या इंसर्ट कर दूंगा, कॉर्क इंसर्ट कर दूंगा। आई विल गोइंग टू इंसर्ट अ कॉर्क, अ टाइट कॉर्क, so that no air can go inside again, so that no air can go inside again, and I will going to remove this heat, I will going to remove this heat now. Now I will going to take this can over here, I will going to take this can out of the heat. So I have taken this can has come here, and what is it is having, it is having some water, it is having some water, and what it is having, it is having that steam of water, it is having steam of water which cannot go out due to this cork in the opening. This was our opening, and this opening there is a tight cork. I have placed a tight cork over here, so this is the tight cork. Now this cannot go out, this steam cannot go out, the outside air cannot come in, and now I have placed this in the atmosphere and the heat supply has been connected, has been disconnected, the heat supply has been disconnected. I have kept this tin can in atmosphere. Now what will going to happen, slowly and slowly this vapor will going to get cooled down due to the temperature. The atmosphere temperature is very less, the temperature of this can is very much, so heat will going to be get transferred from this can to outside, this can will going to cool down, ये कूल डाउन होएगी। जैसे मैं इसको एटमॉस्फेयर में रखूंगा धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होएगी। बेटा जैसे ये ठंडी होएगी आप ये समझें कि ये जो वेपर है, ये जो वेपर है यहाँ पर प्रेजेंट, ये क्या होंगे कंडेंस होने लग जाएंगे, ये कंडेंस होकर वापस क्या बना देंगे बच्चों, पानी ही बना देंगे। जैसे ही these vapors will going to get condensed, they will going to form water again and there will be empty space, यहाँ पर क्या बच जाएगी, empty space हो जाएगी, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होती जाएगी, empty space। तो अगर मैं मान लूँ ये ख़त्म हो गए यहाँ से और क्या बन गए पानी, और थोड़ा सा बचा है यहाँ पर वेपर, क्या बचा है हल्का सा, तो यहाँ पे बहुत सारी क्या बन गई है बच्चों, एम्प्टी स्पेस बन गई है, बहुत सारी क्या बन गई है, एम्प्टी स्पेस बन गई। जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा ना, वो ऑब्जर्वेशन पहले बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका, जैसे आपने इस कैन को बाहर निकाला हीट से, स्टव से बाहर निकाल दिया टाइट कॉर्क लगाकर, तो थोड़ी देर बाद ये कैन विल गोइंग टू कंप्रेस्ड, दिस कैन विल गोइंग टू गेट कंप्रेस्ड, मतलब ये कैन कुछ मैं बता दूं आपको कैसी हो जाएगी, ये कैन कुछ ऐसी हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी। कैन कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। कैन कुछ क्या हो जाएगी, ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली इट विल गोइंग टू गेट कंप्रेस।
अभी कंप्रेस क्यों हुई आप ये समझें, ये अपने आप क्या हो जाएगी कंप्रेस। वो इसलिए हुई क्योंकि आपने देखा ये जो वेपर थे, ये जो यहाँ पर वेपर थे जिन्होंने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी थी, वो वापस क्या बन गए, लिक्विड बन गए। तो यहाँ पर क्या बची है, एम्प्टी स्पेस बची है। क्या बची है, एम्प्टी स्पेस। अब जो बाहर की एयर है वो इस पे कंटिन्यूसली क्या लगा रही थी बच्चों, प्रेशर तो जनरेट कर ही रही थी। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस पे प्रेशर लगा रहा था। तो इस प्रेशर की वजह से पहले ये प्रेशर अंदर की वेपर से बैलेंस था। पहले ये प्रेशर को कौन बैलेंस कर रहा था, ये अंदर के वेपर जो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं और ये लिक्विड जो प्रेशर जनरेट कर रहा है, इससे ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, बैलेंस था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ लाया और ठंडा करा, अब इसमें एयर तो बची नहीं, इसमें केवल क्या थे, वेपर। अब वो वेपर कंडेंस होकर क्या बन गए, लिक्विड बन गए। तो यहाँ पे क्या बच गई, एम्प्टी स्पेस। तो इस प्रेशर को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको बैलेंस करने के लिए अंदर कोई बचा नहीं, तो कंप्रेस हो गई। ये कैन क्या हो गई, पिचक जाएगी। कैन क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। वापस बताता हूँ हो क्या रहा है, वापस समझें आप। मेरे पास एक कैन थी, उसमें मैंने लिया पानी और इसको मैंने करा हीट। जैसे ही मैं इस पानी को हीट करूंगा तो ये पानी के वेपर बनेंगे और एयर को धक्का मारेंगे बाहर की तरफ। यहाँ पर एक ओपनिंग थी जिससे एयर क्या चल गई, बाहर चल गई। जब सारी एयर थोड़ी देर तक हीट करूंगा तो सारी एयर बाहर चल जाएगी और यहाँ पर क्या बचेंगे, वेपर। तभी मैं एक टाइट कॉर्क लगा दूंगा इस ओपनिंग में। क्या लगा दूंगा, टाइट कॉर्क लगा दूंगा, ताकि कोई भी एयर अंदर नहीं आ सके और कोई भी वेपर बाहर नहीं जा सके। उसके बाद मैं इसको हीट पे से हटा दूंगा और बाहर एटमॉस्फेयर में रखूंगा। थोड़ी देर बाद जो मैं देखूंगा वो ये देखूंगा कि कैन अपने आप सिकुड़ गई है, कंप्रेस हो गई है, पिचक गई है। अभी थोड़ी देर बाद अपने आप पिचकी क्यों, उसके अपन एनालिसिस करते हैं। तो आप देखो क्यों पिचकी। यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर थे वेपर्स। वो वेपर ड्यू टू कोल्ड एटमॉस्फेयर क्या हो गए, धीरे धीरे ठंडे हो गए और क्या बना दिया, वापस लिक्विड बना दिया। तो यहाँ जो स्पेस थी जो वेपर ने ऑक्यूपाई कर रखी थी वो अब एम्प्टी हो गई है। तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा था, यहाँ भी लगा रहा था वो कैन पे, लेकिन पहले वो वेपर बैलेंस करके चल रहे थे उस प्रेशर को। अब यहाँ वेपर बचे नहीं, तो इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कोई बचा नहीं। तो एक कैन क्या होगी, बाहर से प्रेशर है, अंदर से कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहा बराबर का, तो कैन क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी, पिचक जाएगी। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर ऑन अस। हमारे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम पढ़ेंगे हमको फील क्यों नहीं हो रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फील होता है तो कब होता है, कैसे होता है, उसकी भी हम स्टडी करेंगे इन आर नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड ह्यूमन बीइंग्स। वी विल गोइंग टू स्टडी द change in pressure with altitude and so on things. I think you have understood what atmospheric pressure means. Atmospheric pressure होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर का कॉलम अपने वेट की वजह से प्रेशर लगा रहा है अर्थ सरफेस पे, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू 101.325 पास्कल के बराबर है। कहां पर, सी लेवल पर। कहां पर है ये वैल्यू, सी लेवल पर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कैसे पता चलेगा, इस एक्सपेरिमेंट से हम बता कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्यों, कैन ली, पानी भरा, गर्म करा, एयर बाहर चल गई, कॉर्क लगा दिया, अब अंदर केवल किया है वेपर है। अब मैंने उसको उठाया और बाहर रख दिया एटमॉस्फेयर में। ठंड, बाहर एटमॉस्फेयर कैसा था, पहले की कंपैरिजन में तो ठंडा था, तो ये वेपर आपस क्या बन जाएंगे, कूल डाउन होके पानी बन जाएंगे। जैसे ही कूल डाउन होके पानी बनेंगे, अंदर स्पेस खाली रह जाएगी, क्योंकि एयर और अब अंदर आ नहीं सकती कॉर्क की वजह से। अंदर की स्पेस खाली है, बाहर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पिचक जाएगी। कैन क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी हैव analyze that atmospheric pressure is there. Okay, thank you for today. We will going to continue in our next lecture.